Okay. So, yesterday what we have seen? Yesterday we have seen how to create profile. Okay. What actually profile can do? What actually profile can do? We have seen in yesterday's session. Okay. मैंने अभी सिर्फ आपको प्रोफाइल का डेफिनेशन बताया है एंड वी हैव क्रिएटेड टू प्रोफाइल. ओके. हम लोग यूजर क्रिएशन के बाद आज हम लोग यूजर क्रिएशन ले लेंगे. उसके बाद विल टेक अ सेपरेट सेशन. ओके. उसके बाद विल टेक अ separate session on configuring the profiles, on configuring the profile. Okay, fine. Now today we see creating the users in Salesforce. Okay, creating the user in Salesforce. I've already told you that for creating a user, okay, for creating a user, which two things are mandatory? For creating a user, which two things are mandatory? That is the license and profile. Without license and without profile we cannot create the user. Okay, हम users नहीं बना सकते हैं. So yesterday we have created two profile, that is CBI Salesforce profile and CBI platform profile. Okay, so for CBI Salesforce profile we have given the license is associated with profile is Salesforce license, and license associated with platform profile is what? Platform licenses. Yesterday we have also seen that we have two license for Salesforce, that is full license, and platform license we have three licenses. Okay. Now, and in Salesforce licenses we have already used one, because when we have created our Salesforce org, that one license is get utilized by your system admin. One license is get utilized by whom? Your system admin. Okay. Now we can create one or more user inside the Salesforce organization. Okay, we can create how many users? We can create one or more than one users in our Salesforce organization. Okay, when we are creating the user, we need to provide the profile. When we are creating the user, we need to provide the what? Profile. We can create one or more user in Salesforce org. Okay, Salesforce org. We can create one or more. Okay, profile is mandatory for creating the user in Salesforce org. Now, the third one is license is also mandatory for creating the user in Salesforce org. Okay. Now, every user which we will create in our Salesforce org, every user which we will create in our Salesforce org will get reside into a object, and that object name is what? User object. And that object name is what? User object, and it is a standard object in Salesforce. Okay, all user get resides in a object, okay, called as user object. Okay, user object in Salesforce. ये चार पॉइंट हमेशा याद रखना फॉर क्रिएटिंग अ यूजर. ओके, दैट वी कैन क्रिएट वन और मोर यूजर.
profile mandatory, license mandatory, and all the object records which is getting created means all the users which is getting created get reside or get stored into which object, that is a user object. Okay, now we'll see the navigation for creating the user. Okay, हम क्या करेंगे, now we'll see the navigation for creating the user. First we'll see the navigation and then practically we'll create the users in our Salesforce org. Okay, so very first step is what? Go to setup. Okay, very first step is what? Go to setup menu as usual. Okay, now first step is go to administer menu. ओके, एडमिनिस्टर मेन्यू जो कि हमको लेफ्ट पैनल में मिलेगा. सेकंड पॉइंट इज expand the manage user link. ओके, अभी जैसे ही हम लोग सेटअप में जाएंगे, सेटअप में जाने के बाद व्हेन विल गो टू आवर, ऊपर ले लेते हैं, सेटअप में जाएंगे, गो टू एडमिनिस्ट्रेटर लेफ्ट पैनल में जाएंगे एंड एज सुन एज विल गो टू एडमिनिस्ट्रेटर मेन्यू हमको एक मैनेज यूजर का लिंक दिखेगा. ओके, जस्ट गो एंड एक्सपांड दैट मैनेज यूजर लिंक. द थर्ड पॉइंट इज जैसे ही आप इसको एक्सपांड करेंगे, एज सुन एज यू विल एक्सपांड द मैनेज यूजर, यू विल सी अ यूजर लिंक. You will see a user link. So click on user link. Okay, click on user link. Now fourth point is as soon as you will click on that user link, आपके सामने users का list आएगा. Okay, you will see the list of users और वहां पे क्या होगा, there will be a button called as create new user. Okay, or new user. Okay, create new user या new user का एक button होगा. Okay, so now click on new user. Okay, click on new user button to create a user in Salesforce. Simple. Now fifth point. Okay, अब यूजर बनाना है तो कुछ मैंडेटरी चीजें होगी जो हमको फिलअप करना पड़ेगा, जो हमको क्या करना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा. सो एंटर यूजर इंफॉर्मेशन. ओके, एंटर व्हाट, यूजर इंफॉर्मेशन. अब वो इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है, दैट इंफॉर्मेशन कैन बी फर्स्ट नेम, ईमेल, ईमेल आईडी होगा. ठीक है, यूजर नेम, लास्ट नेम. ओके, लास्ट नेम भी हो सकता है. टाइटल इज ऑल्सो प्रेजेंट. ओके, एक एलियास करके प्रेजेंट होता है. ओके, एलियास नेम बोलते हैं. वन इज कंपनी. ओके, कंपनी इज ऑल्सो देयर. Designation is also there. Department. Okay, now roles is also there. Okay? And most important, profile select करना है and license. Okay, profile and license. Okay, और भी कुछ fields होती है, so we can do that is etc. Okay, so mostly we need to enter the user information, so it can be first name, last name, title, alias name, company, designation, department, email id, roles, profile and licenses that are most important. Okay, now sixth point,
क्या करेंगे, जैसे ही हमने क्लिक किया, नाउ क्लिक ऑन सेव, ऑन सेव बटन। अभी क्या करेंगे, हम लोगों ने बटन को सेव कर दिया, मतलब हमारा यूजर रिकॉर्ड बन गया। ओके, नाउ माय यूजर रिकॉर्ड गेट created after clicking on what, after clicking on save button my user record get created now। अब जैसे ही आपका यूजर रिकॉर्ड बनेगा इन सेल्सफोर्स, एज सुन एज योर यूजर रिकॉर्ड विल गेट क्रिएटेड, it will send the account activation link to the email id, जो email id we are entering at the time of creation of the user। okay, chronology समझ लो। as soon as you will save the user record, it will send the activation link, user activation link to the email id। which email id, जो email id we are using while creating our user। okay, वो email id पे हमको मेल जाएगा। okay, so when we created our salesforce org, जब हमने salesforce org create किए थे, तो क्या किए थे हम लोगों ने, we have entered all these informations, we have entered all this information, और हम लोगों ने sign up पे क्लिक किया था। so as soon as we click on that sign up, हमको कुछ देर में एक मेल आ गया था। ओके, टू एक्टिवेट द अकाउंट, टू एक्टिवेट द अकाउंट। सेम वे ऐसा ही मेल यूजर क्रिएशन पे भी जाता है, सेम वे ऐसा ही मेल यूजर क्रिएशन पे भी जाता है। एंड वी नीड टू गो टू दैट ईमेल आईडी, वी नीड टू एक्टिवेट दैट यूजर, we need to activate that user, and we need to change the password, we need to enter the security question। okay, and need to एक्टिवेट दैट। सेम वे जैसे हम लोगों ने क्या किए थे एट द टाइम ऑफ आवर ऑर्ग क्रिएशन। ओके, अब ऑर्ग क्रिएशन में भी क्या होता है, एट द टाइम योर ऑर्ग क्रिएशन आपका सिस्टम एडमिन का यूजर बनता है। इन अ सेम वे ऐसे ही हमारे पास क्या बनेंगे, यूजर बनेंगे। तो आप जितने रिकॉर्ड यूजर के बनाओगे उतने बार आपको एक्टिवेशन लिंक जाएगा। ओके, सो ऑब्जर्वेशंस में हम लोग इसको लिख सकते हैं लाइक व्हाट, once you create a user record, once you create what, a user record, it will send an account activation link। okay, account activation link, I'm not talking about account object, huh? Account activation link। okay, account activation link to the user's email id, यूजर के ईमेल आईडी पे वो अकाउंट का लिंक जाएगा। ओके, टू एक्टिवेट दैट अकाउंट। ओके, उसके बाद क्या करना है, वी नीड टू एक्टिवेट द अकाउंट बाय क्लिकिंग ऑन एक्टिवेशन लिंक। हमको क्या करना पड़ेगा, we need to click on that activation link and we need to activate the account। okay, by providing, the password and confirm पासवर्ड, बाय प्रोवाइडिंग द पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। जब हम लोगों ने हमारा सेल्सफोर्स का ऑर्ग बनाए थे, एट द सेम दैट टाइम ऑल्सो वी हैव फॉलोड दिस प्रोसेस। ओके, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड के बाद वी नीड टू गिव अवर अ सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड आंसर।
ओके, सो इन दिस वे हमारा क्या होगा, यूजर विल गेट क्रिएटेड, हमारे क्या हो गए, यूजर विल गेट क्रिएटेड। ओके, नाउ अभी हम लोगों को कुछ यूजर्स बनाने हैं। ओके, नाउ आई नीड टू क्रिएट सम यूजर्स। ओके, सो क्रिएट द बिलो यूजर इन सेल्सफोर्स। अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ सेल्सफोर्स के यूजर्स बनाएंगे। ओके, नाउ अभी हमारे पास सेल्सफोर्स के कितने लाइसेंस है, दो लाइसेंस है। प्लेटफॉर्म के कितने लाइसेंस है, तीन लाइसेंस है। ओके, सेल्सफोर्स लाइसेंस दो एंड प्लेटफॉर्म लाइसेंस तीन। ओके, सेल्सफोर्स के लाइसेंस है दो एंड प्लेटफॉर्म लाइसेंस आर थ्री। सो इसमें से ऑलरेडी एक हमारा यूज हो चुका है, एक रिमेनिंग है। प्लेटफॉर्म के तीन लाइसेंसेस है, तो हमारे तीनों भी क्या हुआ है, यूज हो, तीनों भी अभी रिमेनिंग है। ओके, सो व्हाट वी डू, we will create the user, first user for a salesforce license, that is full license। okay, salesforce license for a full license। okay, और हम लोगों उसको प्रोफाइल देंगे कौन सी, विल गिव प्रोफाइल एज CBI सेल्सफोर्स प्रोफाइल, और हमको प्रोफाइल कौन सी देंगे, CBI प्रोफाइल। ओके, नाउ सो सेल्सफोर्स लाइसेंस कितने हैं, दो। ओके, सेल्सफोर्स लाइसेंस है दो। नाउ प्रोफाइल will give as CBI Salesforce प्रोफाइल, हम उसको CBI Salesforce प्रोफाइल देंगे। ओके, फाइन। सो माय यूजर वन, ओके, माय यूजर वन, मेरा पहला यूजर कौन सा रहने वाला है, मेरा पहला यूजर रहेगा सिस्टम एडमिन, और मेरा जो दूसरा यूजर रहेगा, आई विल क्रिएट दैट यूजर इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, नाउ अब फर्स्ट यूजर कौन सा है, मेरा सिस्टम एडमिन है। सो लेट्स गो एंड चेक व्हाट इज द नेम ऑफ माय सिस्टम एडमिन यूजर। I will go to setup, अपना प्रोफाइल में चलते हैं। ओके, यहाँ से नहीं जाते, लेट्स गो फ्रॉम हियर, प्रोफाइल, सिस्टम एडमिन प्रोफाइल, व्यू यूजर। ओके, सो दिस इज द सिस्टम एडमिन। ओके, ये मेरा सिस्टम एडमिन का प्रोफाइल है, उनका उसका नाम क्या है, क्लाउड बीट्स। ओके, सेल्सफोर्स क्लाउड बीट्स, तो ये मेरा पहला यूजर था एट द टाइम। ओके, सो आई विल कॉपी दिस, सो माय फर्स्ट यूजर इज व्हाट, ये वाला। ओके, सेल्सफोर्स क्लाउड ब्लिट्स करके मेरा पहला यूजर था। सेल्सफोर्स क्लाउड ब्लिट्स वाज माय फर्स्ट यूजर, और ये है सिस्टम एडमिन, सिस्टम system admin। okay, this is what my system admin। now I want to create a one more user, now I want to create a one more user। ओके, कौन से प्रोफाइल के लिए, फॉर CBI सेल्सफोर्स प्रोफाइल, फॉर व्हाट, CBI सेल्सफोर्स प्रोफाइल। अब मेरे पास दो ही लाइसेंस है सेल्सफोर्स के, तो मैं दो ही यूजर बना सकता हूँ, एक ऑलरेडी बन चुका है, एक मुझे अभी बनाना है। तो लेट्स सी, इसको हम लोग डेवलपमेंट यूजर बोलते हैं। ओके, विल हम बोलेंगे डेवलपमेंट यूजर। ओके, अब इसका कोई एक यूजर नेम दे देंगे, लेट्स गिव एज डेवलपमेंट @gmail.com, इसका ये यूजर नेम दे सकते हैं हम लोग। ओके, सो दिस इज व्हाट माय डेवलपमेंट यूजर, एक हमको ये वाला यूजर बनाना है। ओके, जिसका यूजर नेम क्या होगा, डेवलपमेंट
@gmail.com। आपको यहाँ से चेंज करना है, यू कैन चेंज दैट ऑल्सो। इसको ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फाइन। अब ये क्लाउड ब्लिट्स का यूजर नेम क्या था, लेट्स गो एंड सी। इसका यूजर नेम है दिस। इसका यूजर नेम क्या है, दिस। सो आई विल गो एंड आई विल, ये आपको बनाना नहीं पड़ेगा, आपके सबके ऑर्ग में ये जो पहला यूजर है ये ऑलरेडी बना होगा सिस्टम एडमिन का। ओके, ये पहला यूजर आपके सभी के ऑर्ग में ऑलरेडी बना होगा सिस्टम एडमिन का। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू create this second user, you need to create this second user, you need to create this second user for which license, for Salesforce license, for which license, for a Salesforce license, and for which profile, CBI Salesforce profile, CBI Salesforce profile। now अब ये दो लाइसेंस यूज हो गए, सो आई कैन नॉट क्रिएट मोर, सो आई कैन नॉट क्रिएट मोर। बट मेरे पास एक और लाइसेंस है, दैट इज प्लेटफॉर्म लाइसेंस। ओके, मेरे पास एक और लाइसेंस है, दैट इज व्हाट, अ प्लेटफॉर्म लाइसेंस। सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट users for this license। Okay, I will create user for this license, so I can create how many users with the help of three platform license, I can create three users। मेरे पास जितने लाइसेंस है आई कैन क्रिएट उतने यूजर्स। ओके, सो दिस विल बी माय प्लेटफॉर्म लाइसेंस, और मैं उसके लिए प्रोफाइल ले लेता हूँ। आई विल गिव अ प्रोफाइल दैट इज CBI platform profile। I will give the profile CBI platform profile। Okay, I will give profile as CBI platform profile। Okay, now अभी user वन, user टू, user थ्री। ओके, ये प्रोफाइल के अंडर मेरे ये तीन यूजर्स बनेंगे। ओके, सो लेट्स गिव द नेम। इसके लिए हम लोग दे देते हैं टेस्टिंग यूजर। टेस्टिंग यूजर बोलते हैं इसको। So we can say manager user। Okay, manager user। For third one we can say customer user। Okay, customer user। हम लोगों ने अभी ये तीन यूजर्स हमको बनाने हैं। फाइन, एक का नाम होगा टेस्टिंग यूजर, एक का नाम होगा मैनेजर यूजर, एंड एक का नाम विल होगा कस्टमर यूजर। ओके, अब इन सबके यूजर्स नेम हम लोग बना सकते हैं। यूजर नेम। ओके, अब इसको टेस्टिंग यूजर बोल देते हैं, तो लेट्स सी टेस्टिंग यूजर एट द रेट। यूजर नेम हमेशा ईमेल आईडी के फॉर्मेट में होगा, यूजर नेम हमेशा किसके फॉर्मेट में होगा, ईमेल आईडी के फॉर्मेट में होगा। मैंने आपको बताया था एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ अवर सेल्सफोर्स ऑफ। सो ये मेरे हो गए अभी तीन यूजर, और तीन यूजर के हो गए यूजर नेम। सो हम इसको लिख देते हैं, दैट इज मैनेजर यूजर, मैनेजर यूजर, और इसको बोल देते हैं कस्टमर यूजर। ये मेरे यूजर नेम है, ये मेरे क्या है, यूजर नेम है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईमेल आईडी, आई एम टॉकिंग अबाउट यूजर नेम। अब मुझे ईमेल आईडी डालना है, तो आई कैन पुट अ सेम ईमेल आईडी फॉर ऑल दिस यूजर्स। मैं एक कॉमन ईमेल आईडी आई कैन पुट फॉर ऑल माय यूजर which I am creating। I can put a common email ID। मैं common email ID भी put कर सकता हूँ, and I can put a different email ID also। I can put a common email ID also, and I can put a different email ID also। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर अ कंपनी, कोई एक कंपनी में अगर 15-20 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, सबका सेल्सफोर्स में यूजर बनाना होगा, तो दे कैन यूज देयर कंपनी ईमेल आईडी ऑल्सो। सबका अलग अलग होगा, तो सारी चीज़ें सबकी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगी। ओके, नाउ इट इज़ अ फ्री डेवलपर ऑर्ग। और अभी अगर मुझे चार, इफ़ आई वांट टू क्रिएट 4 यूज़र, अब मुझे चार अलग अलग ईमेल आईडीज बनाने पड़ेंगे। सो बेटर है कि आई कैन यूज माय सिंगल ईमेल
आईडी, और उसके थ्रू भी हम लोग इसको डिलीवर्ड कर सकते हैं। सो नाउ अभी आप आपके हिसाब से सेल्सफोर्स में यूजर बना सकते हो। फाइन। नाउ नाउ सेल्सफोर्स क्या करता है अभी, ईच यूजर शुड हैव अ लाइसेंस एंड प्रोफाइल। ये होना ही होना है। ओके, ये होना ही होना है। नाउ एक और चीज, एक बार अगर सेल्सफोर्स में यूजर बन जाता है, ओके, इफ यू क्रिएट द यूजर इनटू अ सेल्सफोर्स, एक बार if you create the sales user into the salesforce, you cannot remove the user record from salesforce। आप यूजर का रिकॉर्ड या यूजर को कभी भी सेल्सफोर्स में से डिलीट नहीं कर सकते। ये एक क्वेश्चन पूछते हैं मोस्टली। ओके, ये क्वेश्चन क्या करते हैं, मोस्टली पूछते हैं इन योर इंटरव्यू कि आई वांट टू डिलीट द यूजर फ्रॉम माय सेल्सफोर्स। सो आप नहीं कर सकते हैं। तो उसके अगेंस्ट में क्या ऑप्शंस है वो भी हम देखेंगे। सो लेट्स गो एंड सी प्रैक्टिकली हाउ वी कैन क्रिएट द यूजर। ये यूजर मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है। नाउ फर्स्ट आई विल क्रिएट दिस डेवलपमेंट यूजर। ओके, सो मुझे कहाँ जाना है, आई वांट टू गो टू एडमिनिस्ट्रेटर मेन्यू, मैनेज यूजर, यूजर लिंक, ओके, न्यू यूजर बटन, एंटर द इंफॉर्मेशन, क्लिक द सेव। ओके, नाउ सो लेट मी ओपन। फर्स्ट मुझे एक काम करते हैं, मुझे यहाँ पे मैंने कौन सा ईमेल आईडी डाला था, लेट मी सी। ओके, सो दिस इज माय ईमेल आईडी, सो आई विल यूज दिस ईमेल आईडी। ओके, सो आई विल यूज दिस ईमेल आईडी, कॉपी। ओके, नाउ लेट मी ओपन माय ईमेल, दिस इज माय ईमेल। ओके, ये मेरा ये वाला ईमेल आईडी हो गया। नाउ ओके, सो दिस इज हाउ माय ईमेल आईडी इज। ओके, नाउ okay, so go to our org। okay, go to setup, setup से administrator menu, from administrator menu you can go to manage user। as soon as you will expand this manage user, you can see the user link, right click करो और directly click, no issues, you can see the all user present in your salesforce। और आप देख सकते हो इतने सारे यूजर्स मेरे सेल्सफोर्स में प्रेजेंट हैं। ओके, दीज आर द ऑल यूजर्स प्रेजेंट इन माय सेल्सफोर्स। नाउ यू कैन सी द न्यू यूजर, नाउ यू कैन सी द न्यू यूजर। सो आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड यू कैन क्रिएट अ न्यू यूजर। फाइन। सो ये तो हो गया हमारा क्लासिक क्लासिक व्यू में। ओके, बट विल गो एंड क्रिएट द यूजर इन लाइटनिंग व्यू। ओके, हम लोग लाइटनिंग व्यू में यूजर क्रिएट कर रहे हैं। फाइन। सो सेम वे, सेम चीज है। ओके, मतलब हमारा जो नेविगेशन है सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, सो व्हाट विल डू, विल स्विच टू लाइटनिंग एक्सपीरियंस। हम लोग लाइटनिंग एक्सपीरियंस में स्विच कर लेते हैं। ओके, सो वी हैव स्विच ऑन लाइटनिंग एक्सपीरियंस। नाउ गो टू सेटअप, क्लिक ऑन द सेटअप। अब यहाँ से सेटअप में जाके आप डायरेक्टली यू कैन टाइप यूजर। डायरेक्टली व्हाट यू कैन टाइप, यू कैन टाइप यूजर। जैसे ही आप यूजर टाइप करोगे आपको यहाँ पे यूजर्स मिलेगा। ओके, यू कैन सी द यूजर। सो क्लिक ऑन दिस यूजर। जैसे ही आप यूजर पे क्लिक करोगे सेम स्क्रीन ओपन होगी जो हमारी इससे पहले हुई थी इन आवर क्लासिक मोड। सेम स्क्रीन हमारी ओपन होगी। ओके, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, ना अभी मैंने क्या बोला था, आई वॉन्ट टू क्लिक ऑन वॉट, आई वॉन्ट टू क्लिक ऑन न्यू यूजर बटन। हमको क्या करना है, न्यू यूजर बटन पे क्लिक करना है। सो विल गो एंड क्लिक ऑन न्यू यूजर। हम लोगों ने न्यू यूजर पे क्लिक किया तो हमारे सामने इतनी सारी ऑप्शंस आ गए। इतने सारे ऑप्शंस आ गए, फर्स्ट नेम, रोल, यूजर लाइसेंस, प्रोफाइल, ओके, एक्टिव, लास्ट नेम, एलियास, ईमेल, यूजर नेम, निक नेम। ओके, और बहुत सारे ऑप्शंस है। जो जो मैंडेटरी है वो हम लोग फिल कर सकते हैं, जो मैंडेटरी नहीं है उसकी हमको ज़रूरत
भी नहीं है। ओके फाइन। सो माय फर्स्ट नेम फॉर दिस यूजर इज व्हाट आई वांट टू क्रिएट अ which user, development user. So let's go development. Okay, we can write a last name that is user. So this is my development user. तो जैसे ही आप फर्स्ट नेम लास्ट देखो, फर्स्ट नेम इज ऑल्सो नॉट मैंडेटरी, लास्ट नेम इज मैंडेटरी। ओके, सो यू कैन क्लिक ऑन दिस डेवलपमेंट यूजर। ओके, यू कैन क्लिक ऑन व्हाट, डेवलपमेंट यूजर। सो जैसे ही आपने डेवलपमेंट यूजर यहाँ पे पूरा लिख लिया, ये अपने एक एलियास बना देता है। ओके, यूनिक कॉम्बिनेशन विद द हेल्प ऑफ योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, वो एक यूनिक कॉम्बिनेशन आपका बना देता है। ईमेल आईडी मुझे पुटअप करना है। ओके, सो आई विल पुट माय ईमेल आईडी। ये वाला एक ईमेल आईडी आई विल पुट। ओके, ये वाला ईमेल आईडी पुट कर लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं। ओके फाइन, काम करता हूँ, आई कैन टाइप ओनली, नो प्रॉब्लम। को मैं जैसे DC 2504 ऐसे C2504 gmail.com। ओके, सो व्हाट, दिस इज माय ईमेल। ओके, सो दिस इज माय ईमेल आईडी। अब सारे मेल्स मुझे कहाँ जाएंगे, इस ईमेल आईडी पे जाएंगे। ओके नाउ, इसके लिए हम लोगों ने एक यूजर नेम बनाया था, सो दैट यूजर नेम इज development@cloudblitz.com को हम लोग कॉपी कर लेते हैं ओवर हियर एंड विल। फाइन, और ये निकनेम आपका खुद ही बन के आ जाता है। ओके, ये निकनेम आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद बन के आ जाता है। टाइटल, कंपनी, डिपार्टमेंट, डिवीजन, यू कैन एंटर। आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। ओके, हाँ बोलो। कुछ भी नहीं चलता, उसका फॉर्मेट जो है वो ईमेल के फॉर्मेट में होना चाहिए, बट चल जाएगा, बट अगर ऑलरेडी सेम यूजर नेम तुम्हारे ऑर्ग में एग्जिस्ट करता है तो वो वर्क नहीं करेगा मोस्टली। ओके, सो दैट इज यूजर नेम। ओके नाउ, बाकी चीजें इट इज नॉट मैंडेटरी। ओके, मोबाइल नंबर एंटर करना है आप कर सकते हो, नहीं करना है मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये भी सारी चीजें अभी तो यहाँ पे फिलअप हो गई है, क्योंकि वो यहाँ से हो गई, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आपको करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो नो इश्यूज। ओके, बिकॉज इट इज ए फ्री डेवलपर और तो इसकी जरूरत नहीं है हमको। हाँ, जब आप इफ यू आर वर्किंग इन अ रियल टाइम देन यू कैन डू इट। ओके, ये टाइम जोन वगैरह है और कुछ नहीं है। ओके नाउ, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है योर यूजर लाइसेंस एंड योर प्रोफाइल। ओके, नाउ योर प्रोफाइल डिपेंड्स ऑन योर यूजर लाइसेंस। आपका प्रोफाइल आपके यूजर लाइसेंस पे डिपेंड करता है, आपका प्रोफाइल आपके यूजर लाइसेंस पे डिपेंड करता है। इसलिए मैंने कल जब प्रोफाइल बनाए थे तो सेल्सफोर्स लाइसेंस प्रोफाइल यहाँ पे लिखा था, क्रिएट द सेल्सफोर्स लाइसेंस प्रोफाइल। ओके, यहाँ पे create the platform license profile because your profile depends on your license। now अब मैं यहाँ पे जाऊंगा और मेरे पास यहाँ पे सारे लाइसेंसेस के नाम है। ओके, these are the licenses available in my org। you can see salesforce, you can see salesforce platform। okay, force.com, free force.com, chatter, external, ओके, पार्टनर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। आई वॉन्ट टू सिलेक्ट द सेल्स फोर्स, मुझे सेल्स फोर्स लाइसेंस सिलेक्ट करना है। देखो, सेल्स फोर्स प्लेटफॉर्म और सेल्स फोर्स लाइसेंस में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू द डिफरेंसेस। सेल्स फोर्स इज व्हाट, फुल कॉपी। ओके, सेल्स फोर्स इज व्हाट, फुल कॉपी। सो आई विल क्लिक ऑन दिस सेल्स फोर्स। जैसे ही मैंने यहाँ पे सेल्स फोर्स क्लिक किया ना, मुझे सिर्फ उतनी ही प्रोफाइल्स मिलेगी, उतनी ही प्रोफाइल्स मिलेगी जो सेल्स फोर्स लाइसेंस के साथ क्या है, अटैच्ड है। जो सेल्सफोर्स लाइसेंस के साथ अटैच है उतनी ही प्रोफाइल मुझे मिलेगी। सो हम लोगों ने कल एक प्रोफाइल बनाया था, दैट इज CBI सेल्सफोर्स प्रोफाइल। ओके, CBI सेल्सफोर्स प्रोफाइल। ओके, सो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैं ये चेक कर लूंगा। नाउ देखो, लाइसेंस टू प्रोफाइल इज वन टू मेनी बट प्रोफाइल टू लाइसेंस इज वन टू वन। मीन्स एक प्रोफाइल को एक ही लाइसेंस हो सकता है, बट एक लाइसेंस मल्टीपल प्रोफाइल्स को जा सकते हैं।
फाइन. नाउ आई विल सिलेक्ट दिस CBI सेल्सफोर्स प्रोफाइल. ओके, मैंने यहाँ पे CBI सेल्सफोर्स प्रोफाइल क्लिक कर लिया है. आप लोग भी ऐसे ही करना. ये रोल का ऑप्शन है, इट इज नॉट मैंडेटरी. ओके, इट इज नॉट मैंडेटरी. उसका एक अलग, देर इज एन अलग, देर इज अ डिफरेंट टॉपिक फॉर दिस. विल सी. ओके, नाउ क्लिक ऑन सेव. आप क्या करोगे, इस पे अभी सेव पे क्लिक करोगे. लेट्स सेव. ओके, सो नाउ मेरा यूजर बन गया. ओके, माय यूजर गेट्स क्रिएटेड. माय यूजर गेट्स क्रिएटेड इन सेल्सफोर्स. नाउ अभी ये यूजर को हमको एक्टिवेट करना है. ओके, ये यूजर को हमको क्या करना है, एक्टिवेट, सो दैट दिस यूजर कैन लॉग इन इनटू योर सेल्सफोर्स ऑर्ग. सो दैट दिस यूजर कैन लॉग इन इनटू योर सेल्सफोर्स ऑर्ग. सो लेट्स सी, हमको मेल आया है क्या. यस, आई गॉट द मेल. ओके, मुझे ये मेल आया है. वेलकम टू सेल्सफोर्स, क्लिक बिलो टू वेरीफाई योर अकाउंट. वेरीफाई अकाउंट, और ये मेरा उसका URL है. दिस इज माय व्हाट, यूजर नेम. ओके, दिस इज व्हाट माय यूजर नेम. दिस इज व्हाट माय यूजर नेम. ओके, यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर रिमेम्बरिंग पर्पस. एंड नाउ वेरीफाई अकाउंट. आई विल वेरीफाई द अकाउंट. और मुझे यहाँ पे अभी पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा. तो जैन शिफ्ट एट द रेट 2022. ओके, कंफर्म पासवर्ड 2022. ओके, सिक्योरिटी क्वेश्चंस में डाल देते हैं. ओके, फाइन. चेंज द पासवर्ड. अब मेरा पासवर्ड चेंज हो गया है. ओके, नाउ माय पासवर्ड गेट्स चेंज. मेरा पासवर्ड अभी चेंज हो गया है. नेवर. ओके, नाउ यहाँ पे मैंने इसका यूजर नेम, दिस इज माय यूजर नेम. ओके, ऑलरेडी मैंने वही यूजर नेम यूज किया था. सो नो चूज. और उसके लिए मैं यहाँ पे पासवर्ड भी मैंने पुट अप कर दिया है. ओके, दैट इज ओके. सो मेरा पहला यूजर बन गया. अभी मेरा क्या हो गया, पहला यूजर बन गया. नाउ सी, मेरे पास कितने यूजर लाइसेंस थे, दो. मेरा सिस्टम एडमिन ने ऑलरेडी एक यूज कर लिया था. ओके, फाइन. नाउ मैंने अभी एक और सेल्सफोर्स का लाइसेंस यूज कर लिया है. तो मेरे पास अभी लाइसेंस कितने बचने चाहिए सेल्सफोर्स के, जीरो. मेरे पास कितने बचने चाहिए सेल्सफोर्स के लाइसेंस, इट शुड बी जीरो. ओके, ये देखो, ये अपने आप जैसे ही मैंने एक्टिवेट किया है, ये अपने आप क्या हो गया, लॉग इन हो गया यहाँ पे. तो अब मुझे इससे लॉग आउट कर लेने का है. मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल. ओके, लेट्स सी, ये भी लॉग आउट हुआ है क्या. ओके, फाइन, मेरा ये भी लॉग आउट हो गया है. सो आई विल गो. हम लोग उसका लॉगिन भी करेंगे, नो इश्यूज. ओके, सो दिस इज माय सिस्टम एडमिन प्रोफाइल. सो गो टू कंपनी इंफॉर्मेशन. कंपनी इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे. नाउ यू कैन सी द सेल्सफोर्स लाइसेंस एक्टिव, टोटल लाइसेंस दो, यूज लाइसेंस दो, एंड रिमेनिंग इज जीरो. ओके, रिमेनिंग इज व्हाट, जीरो. नाउ हम लोग चलते हैं फटाक से और विल क्रिएट दिस थ्री यूजर्स. हम लोग ये तीन यूजर्स बना लेते हैं. ओके, नाउ सबसे पहले हम बनाएंगे टेस्टिंग यूजर. सो नाउ अगेन गो टू यूजर. ऑन दिस यूजर, क्लिक ऑन न्यू यूजर. देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं आ गया होगा यूजर डेवलपमेंट. ओके, यूजर डेवलपमेंट. नाउ क्लिक ऑन न्यू. यूजर लाइस अपने आप आ गया होगा. यूजर नेम ये वाला आ गया है, गलती से हमको इसको निकाल लेना है. यूजर शिफ्ट एट द रेट दिस. ओके, सो विल select this. यहाँ पे क्या बनता है, यूजर created. now. Okay, now what I want the license. अभी देखो,
ध्यान से देखो, अभी आपको सेल्सफोर्स लाइसेंस कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, बिकॉज हमारे पास अभी सेल्सफोर्स लाइसेंस है ही नहीं. सो यू कैन नॉट असाइन अ सेल्सफोर्स लाइसेंस अगेन. यू कैन नॉट असाइन अ सेल्सफोर्स लाइसेंस अगेन बिकॉज for a free developer org, Salesforce has provided only two Salesforce licenses, that is full licenses. We have already used, so अभी हमारे पास वो नहीं है. So हम लोग Salesforce platform license यूज करेंगे. So click on this Salesforce platform. अब ये Salesforce platform license से associated जितनी भी profiles है, that that profile you can see in drop down. दो, देखो दो प्रोफाइल्स है, स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म यूजर और एक सीबीआई प्लेटफॉर्म प्रोफाइल. सो हम लोगों ने सीबीआई प्लेटफॉर्म प्रोफाइल बनाए थे और उसको क्लोन किए थे फ्रॉम वेयर, स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म यूजर से. सो नाउ आई विल क्लिक ऑन दिस सीबीआई. ओके, और आई विल क्लिक ऑन दिस सेव बटन. मैं यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर लेता हूँ. फाइन. एज सुन एज आई क्लिक ऑन दिस सेव बटन, मुझे फिर से एक एक्टिवेशन लिंक यहाँ पे आया होगा. सी, देयर इज एन एक्टिवेशन लिंक अगेन. सो नाउ this is my testing user. Okay, copy this, verify, सेम पासवर्ड रखते हैं, जैन शिप एट द रेट 2022. सबके सेम पासवर्ड रख सकते हो आप, बिकॉज याद करने का प्रॉब्लम नहीं. चेंज, मेरा चेंज हो गया और ये भी मेरा यूजर क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया है. दिस यूजर इज ऑल्सो एक्टिवेटेड और इससे लॉगिन भी हो गया है. यू कैन सी टेस्टिंग यूजर. ओके, ये टेस्टिंग यूजर से मेरा अभी लॉगिन भी हो चुका है. नाउ आई विल लॉग आउट. इसको मैं बंद कर देता हूँ. ओके, नाउ लेट्स, ये मेरा क्लाउड प्लेट्स वाला यूजर है. ओके, अगेन आई विल गो यूजर, आई विल क्लिक ऑन दिस यूजर. क्या हुआ इसको, क्लिक ऑन दिस यूजर. ओके, लेट मी लॉग आउट. अच्छा, टेस्टिंग यूजर है, फाइन. गो टू यूजर, लेट मी डू वन थिंग. ओके, मैं काम करता हूँ. आई विल यूज अ डिफरेंट ब्राउजर, सो मुझे लॉग आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हर बार. I will go to the user. Okay, now where is my cloud blitz? Okay, this is my cloud blitz. Copy, and share. Remember me. Okay, verification email code. Let's go. Because I am first time I am logging in that different account. That is the reason उसने मुझे verify code मांगा है. अब नहीं मांगेगा दोबारा. Now it is verified. Okay, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से यूज़र बना लेता हूँ, सो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके, नाउ गो टू यूज़र. ओके, एंड नाउ क्लिक ऑन दिस न्यू यूज़र. हम लोगों ने कौन सा बना लिया है, टेस्टिंग का बना लिया है. नाउ विल क्रिएट दिस मैनेजर यूज़र. ओके,
manager user, manager user, alias, okay, username this, सारी चीजें जैसे कि वैसी रखनी है। ओके फाइन। नाउ अगेन यहाँ पे सेल्सफोर्स का लाइसेंस नहीं है, सो आई विल यूज प्लेटफॉर्म लाइसेंस, CBI प्रोफाइल, सेव। एज सुन एज आई क्रिएट, मेरे पास फिर से एक मेल आया होगा यहाँ पे। This is the mail. Verify. I will click on this. Verify account. Jan shift at the rate 2022. Okay. So now ये मेरा चेंज हो गया है और now it is also get logged in. Now इसको हम यहाँ से लॉग आउट कर देते हैं। Okay, इसको लॉग आउट कर देते हैं। Now we'll create our last user. Okay, user, user. Click on new user. And my last user is what? Customer user at the red Cloudbridge Technology. Username. Okay, customer user. एलियास कभी कभी क्या होता है ना कि एक यूजर का वो एलियास बोले तो एक कॉलम होता है ना कि एक कुछ तो भी नेम होता है एक अलग से, उसको एलियास बोलेंगे। पेट नेम जैसा नेम होता है ना, उसको पेट नेम उस हिसाब से काम आता है ये। मतलब कभी कभी यू कैन से अगर आपको कोई यूजर को क्वेरी करना है तो विद द हेल्प ऑफ दिस एलियास आप कर सकते हो, तो पर्टिकुलर वही यूजर उठा के लाएगा, बिकॉज इट इज इन अ स्मॉल साइज, उसके कैरेक्टर कम होते हैं ना, तो इट इज बेस्ट टू क्वेरी विथ एलियास, क्योंकि वो एलियास का कोई दूसरा, वो नेम का कोई दूसरा एलियास नहीं होगा आपके पास, इट इज लाइक अ यूनिक, दैट इज द रीजन। बोल सकते हैं बट मोस्टली आईडी नहीं बोलेंगे उसको, इट इज लाइक एन एलियास। ओके, इट इज लाइक एन एलियास। कभी कभी क्या होता है, सपोज इफ यू वांट टू क्वेरी द यूजर विद द हेल्प ऑफ यूजर नेम, और अगर उसके अंदर एलियास का एंड कंडीशन लगा दोगे तो इट विल फेच द करेक्ट यूजर एक्चुअली। ओके, इस वजह से, क्योंकि हर यूजर जो भी बनता है उसका खुद का एक ऑलरेडी सेल्सफोर्स का यूनिक रिकॉर्ड आईडी बनता है। ओके, सो इट इज नॉट लाइक एड आईडी, इट इज एक एलियास जैसा बनता है। ओके, यूनिक नेम टाइप हम लोग उसको बोल सकते हैं। ओके फाइन। जैसे कि आपका नाम प्रमोद है, तो बट अगर आपको घर में कुछ और बुलाते होंगे, ओके, सो लाइक दैट ओनली। सो नाउ अगेन माय प्लेटफॉर्म लाइसेंस। ओके, अब मुझे ये 2 बार हो गया, ये थर्ड टाइम आई एम यूजिंग दिस, तो जैसे ही मैं चौथी बार क्रिएट करने जाऊंगा, इट यहाँ पे वो लाइसेंस नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे वो लाइसेंस नहीं आएगा। नाउ लेट्स गो एंड सी मुझे वो यूज आया है क्या। यस, ओके, सो कॉपी दिस, जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेट्स गो हियर and shift and shift, okay,
नाउ यू कैन सी हमारे तीनों भी यहाँ पे भी क्या बन गए हैं, यूजर्स बन गए। ओके, नाउ इफ यू गो एंड क्लिक द यूजर, अभी मेरे पास सारे यूजर्स बन गए। यूजर टेस्टिंग रिकॉर्ड यूजर बन गया है। ओके, यूजर मैनेजर बन गया है, यूजर डेवलपमेंट बन गया है, यूजर कस्टमर बन गया है। ओके, टेस्टिंग, मैनेजर, डेवलपमेंट एंड कस्टमर। ओके, सो ये जो कस्टमर यूजर्स है इन लोगों का प्रोफाइल है सीबीआई। ओके, सीबीआई, सीबीआई एंड सीबीआई, और इसका है सीबीआई सेल्स फोर्स प्रोफाइल। ओके, अभी इसका क्या है, सीबीआई सेल्स फोर्स प्रोफाइल। और आप यहाँ पे चेक कर रहे होंगे आपको कहीं पे भी यूजर का डिलीट बटन का ऑप्शन नहीं है। यूजर का आपको कहीं पे भी डिलीट बटन का ऑप्शन नहीं है। मीन्स व्हाट, यू कैन नॉट डिलीट द what user, you cannot delete the user from your salesforce। okay, now अब मैं क्या करता हूँ, I will go and I will click on this testing user। let's see I can log in। मुझे इसको अभी क्या करना है, अभी लॉग इन करना है इसमें। ओके, अभी नाउ आई वांट टू लॉग इन। सो मेरे पास इसका यूजर नेम है। आई विल गो कॉपी दिस, ये वाले इस पे चले जाते हैं, इसको बंद कर देते हैं। login.salesforce.com, login with different username, this username and it 2022। Let's, now you can see I can log in। मैं यहाँ पे लॉग इन कर सकता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आई कैन लॉग इन। ओके, मैं यहाँ पे लॉग इन कर सकता हूँ। लेट्स गो ओवर हियर। अभी अभी यहाँ पे इसका जो मैंने आपको बताया था, इसका यूजर लाइसेंस कौन सा है, सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म। कौन सा है, सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म। अभी सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म लाइसेंस को क्या चीजें दिखती है सिर्फ हमारे ऑर्ग में, बताओ बताओ। Yesterday or day before yesterday I have told you na difference between that Salesforce license and Salesforce and platform license, भूल गए। अच्छा, और this license will grant the access on purely custom functionality। ओके, जैसे कि कस्टम ऑब्जेक्ट, कस्टम एप्लीकेशन, कस्टम फील्ड्स अलोंग विथ सम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। मतलब मुझे स्टैंडर्ड एप्लीकेशन भी नहीं दिखते इसमें। ओके, मुझे स्टैंडर्ड एप्लीकेशन भी नहीं दिखने चाहिए। तो अभी मेरा जो टेस्टिंग का यूजर है, इसको मेरा कौन सा लाइसेंस है, सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म। ओके, सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म लाइसेंस है। दैट्स व्हाई सी इफ आई एम गोइंग हियर और व्यू ऑल करता हूं, तो मुझे सेल्स के एप्लीकेशन, सर्विस के एप्लीकेशन, मार्केटिंग के एप्लीकेशन दिख रहे हैं। इज इट विजिबल, नहीं। और मुझे इतने ही ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, अकाउंट, अलर्ट, अप्रूवल रिक्वेस्ट, ये सारी चीजें, ईमेल टेम्पलेट्स, डैशबोर्ड, कॉन्टैक्ट्स, contact chatter, external applications, my first lightning page because it is a custom, people, recycle bin, these are the what स्टैंडर्ड। ओके, सो कुछ स्टैंडर्ड चीजें मुझे दिख रही है और बाकी सारी मुझे क्या दिख रही है, सारे कस्टम दिख। माय लाइटनिंग टैब, पेज टैब, इट इज कस्टम। माय लाइटनिंग कंपोनेंट टैब, इट इज कस्टम। व्यू ऑफ पेज टैब, इट इज कस्टम। टास्क, इट इज व्हाट स्टैंडर्ड। सो इतनी ही स्टैंडर्ड चीजें मुझे दिख रही है और मुझे एक भी यहाँ पे स्टैंडर्ड एप्लीकेशन नहीं दिख रहा है। सो दिस इज व्हाट डिफरेंस बिटवीन यूर सेल्सफोर्स लाइसेंस एंड व्हाट यूर प्लेटफॉर्म लाइसेंस। जैसे ये यूजर को मेरा सेल्सफोर्स का लाइसेंस है तो मुझे यहाँ पे सारी चीजें दिखती हैं। ओके, और मैं वही ऑर्ग में लॉग इन हूँ जो ऑर्ग में
ये लाइसेंस, ये लॉगिन है। ओके, सेम एप्लीकेशन मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है। ओके, आई कैन सी द सेम एप्लीकेशन बट आई कैन नॉट सी सारी चीजें यहाँ पे। ओके, आई कैन नॉट सी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर सेल्सफोर्स लाइसेंस एंड योर प्लेटफॉर्म लाइसेंस, और हम लोगों ने ये प्रोफाइल यहाँ पे बनाया हुआ है। ओके, नाउ इफ आई वांट टू ऐड, तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, बट कौन से, सिर्फ कस्टम और कुछ जो स्टैंडर्ड अवेलेबल है वही ऐड कर सकता हूँ। सारी चीजें आई कैन नॉट ऐड, सारी चीजें आई कैन नॉट ऐड। ओके, सपोज इफ आई विल गो टू सेटअप, ओके, मैं यहाँ पे सेटअप में आ रहा हूँ। लेट्स गो टू दिस सेटअप। ओके, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाते हैं। अभी यहाँ पे कुछ ही ऑब्जेक्ट मुझे दिख रहे हैं, सारे ऑब्जेक्ट मुझे नहीं दिख रहे। ओके, मुझे क्या कहते हैं, कुछ ही ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, सारे ऑब्जेक्ट मुझे नहीं दिखते हैं। ओके, काउंट एक्टिविटी, और सारे यहाँ पे कौन से ऑब्जेक्ट दिखेंगे मुझे, सारे कस्टम ऑब्जेक्ट दिखेंगे, और कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट दिखेंगे, और कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट दिखेंगे। फाइन, नाउ आई विल क्लिक ऑन दिस होम, और मैं यूजर पे क्लिक करूंगा। आई विल क्लिक ऑन दिस यूजर, आई विल क्लिक ऑन दिस यूजर। सो सी, मुझे यहाँ पे न्यू बटन भी नहीं दिख रहा है। आई कैन नॉट क्रिएट द यूजर, आई कैन नॉट क्रिएट द यूजर। ओके, बिकॉज इसको कौन सा लाइसेंस है, प्लेटफॉर्म लाइसेंस है। ओके, सो दिस इज हाउ वी क्रिएट आवर यूजर्स इन सेल्सफोर्स। अभी हम लोग इस तरीके से यूजर्स क्रिएट करते हैं सेल्सफोर्स में। ओके, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सेल्सफोर्स में वी क्रिएट द यूजर्स, और आपको भी इस तरीके से सेल्सफोर्स में यूजर बनाने हैं। ओके, यू ऑल्सो नीड टू क्रिएट द यूजर्स इन दिस वे इनटू द सेल्सफोर्स। ओके, अभी we cannot, okay, we cannot remove, delete the users from the Salesforce. Okay, we cannot remove, delete the user from the Salesforce. Okay, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, बट ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, नाउ अभी किसी के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है क्या? अगर मैंने सिर्फ एक चीज बोला कि मैं यूजर को डिलीट नहीं कर सकता हूँ। ओके, सो नाउ कंसिडर, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, और 1 मिनट के लिए, 1 मिनट में फिर वापस आता हूँ। ओके, सपोज कंसिडर, Pramod, you are working in HCL. Okay, so consider you are working on a Salesforce project. आप क्या कर रहे हो, अभी एक Salesforce के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। You are the developer. आप क्या हो, डेवलपर हो। ओके, आपके साथ और दो डेवलपर है। ओके, आपके साथ क्या है, और दो डेवलपर है। सभी, क्वेश्चन इज फॉर एवरीवन, नॉट फॉर प्रमोद इटसेल्फ, आई हैव जस्ट टेकन द एग्जांपल। आप सबके साथ क्या हो रहा है, विथ यू देयर आर टू मोर डेवलपर्स। ओके, एंड यू वेर वर्किंग फ्रॉम लास्ट 1 और 2 years। ओके, साथ में आप काम कर रहे हैं। अभी जो प्रमोद के साथ जो एक और डेवलपर है, सपोज कंसिडर डेवलपर वाई। ओके, डेवलपर वाई, अभी ही गॉट अ जॉब, ही गॉट अ डिफरेंट जॉब विथ सम हाई पैकेज। सो उन्होंने क्या किया, अभी कंपनी को छोड़ दी, ही रिजाइन फ्रॉम द कंपनी। ऐसे टाइम पे उनका यूजर तो बना हुआ है सेल्सफोर्स में। ओके, ऐसे टाइम पे सेल्सफोर्स में उनका यूजर तो बना हुआ है। ऐसे टाइम पे उनका सेल्सफोर्स का यूजर तो बना हुआ है। ही कैन लॉग इन, ही कैन लॉग इन, वो लॉग इन कर सकते हैं। ओके, वो क्या कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं, बट अभी वो तो दूसरे कंपनी में चले गए। फाइन, ही वेंट टू सम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसे में हाउ यू विल प्रोटेक्ट him, or how you will restrict him to log in into your Salesforce org। अब ऐसे में आप Salesforce org में उसको कैसे रिस्ट्रिक्ट करोगे लॉग इन करने के लिए? ओके, क्योंकि मैं यूजर डिलीट नहीं कर सकता हूं Salesforce में से, दिस इज द कंडीशन, डीएक्टिवेट करके। ओके, और पासवर्ड चेंज कर देंगे, और
यस ही कैन डू द फॉरगेट पासवर्ड ऑल्सो। ओके, मुझे 1 मिनट दो, आई विल। हाँ, आप सब सोच के रखो, सबसे आंसर लेने वाला हूँ मैं। ओके, मुझे 2 जनों के आंसर आ गए हैं, बाकी 3 जनों के और आंसर आने चाहिए। सो आई वांट आंसर, मुझे बस 1 मिनट दो। हाँ, एक ऑफिस से कॉल आ रहा है, जस्ट गिव मी अ मिनट। बोलना, बोलना। पढ़ाई करना, क्लास चालू। ओके, आई एम बैक। मुझे 2 जनों के तो आंसर मिले थे, अब मुझे और बाकी 3 जनों से भी आंसर चाहिए। क्या करूं? ठीक है, एक और चीज, मुझे एक और क्वेश्चन ऐड करना है। अभी मेरे पास अगर 10 लाइसेंस है, ओके, अगर अभी मेरे पास कितने हैं, 10 लाइसेंस है, और मेरे पास 10 यूजर्स है, और वो 10 में से 10 को वो लाइसेंस अप्लीकेबल है। ओके, 10 सेल्सफोर्स लाइसेंस है, और 10 को वो सेल्सफोर्स लाइसेंस, सब 10 एम्प्लॉयज के पास वो सेल्सफोर्स लाइसेंस है। अब उसमें से 5 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, तो फिर वो लाइसेंसेस का क्या होगा? फिर से कंपनी को, जो उनके जगह जो 5 नए यूजर्स, आज 2 नए डेवलपर्स आएंगे, तो कंपनी को फिर से 5 एक्स्ट्रा लाइसेंस लेने पड़ेंगे या नहीं लेने पड़ेंगे? रीअसाइन कर सकते होंगे। ओके, 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 फाइन, चलो। सो यू आर ऑन अ करेक्ट पाथ, आप लोग क्या है, करेक्ट पाथ पे। ओके, देखो, अभी हम लोग रिमूव नहीं कर सकते। ओके, हम लोग अभी रिमूव नहीं कर सकते, बट हमको सेल्सफोर्स ने 2 ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, सेल्सफोर्स हैज गिवन अस 2 ऑप्शन इन दिस सिनारियो। ओके, सो फर्स्ट वन इज, जैसे आई थिंक फाल्गुन ने बोला था, है ना, डीएक्टिवेट द यूजर। ओके, पहला है डीएक्टिवेट द यूजर, एंड माय सेकंड वन इज फ्रीज द यूजर। पहला है डीएक्टिवेट द यूजर, एंड सेकंड वन इज द फ्रीज द यूजर। ये 2 चीजें हैं। ओके, ये 2 चीजें हैं। नाउ, अभी दिस इज माय org। ओके, एंड नाउ आई एम गोइंग टू सेट अप यूजर। नाउ दिस इज माय सेल्सफोर्स क्लाउड पेज। ओके, जैसे हमने जितने भी यूजर बनाए हैं, यू कैन सी अ एक्टिव चेकबॉक्स इन दैट, यू कैन सी अ एक्टिव चेकबॉक्स इन दैट। दिस इज द रीजन आई डोंट लाइक what Salesforce Lightning।
सो देखो, यहाँ पे क्लाउड बिट्स मैंने ओपन किया, तो यहाँ पे आपको हमेशा देखो ये एक एक्टिव का चेकबॉक्स दिखने वाला है। ओके, ये आपको क्या दिखना है, हमेशा एक एक्टिव का चेकबॉक्स दिखने वाला है। ये एक्टिव के चेकबॉक्स को अगर हमको किसी यूजर को डीएक्टिवेट करना है तो इसका वैल्यू हमको इसका वैल्यू अपडेट करना पड़ेगा। मतलब दिस इज नाउ चेक, हमको इसको अनचेक करेंगे सो इट विल बी डीएक्टिवेट। ये यूजर क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। और एक बार कोई यूजर अगर डीएक्टिवेट होता है तो ही कैनॉट लॉग इन इनटू योर सेल्सफोर्स ऑर्ग, वो सेल्सफोर्स ऑर्ग में दोबारा कभी लॉग इन नहीं कर सकता। ओके, वो दोबारा कभी सेल्सफोर्स में लॉग इन नहीं कर सकता। फाइन। एंड सेकेंड वन इज योर फ्रीज ऑप्शन, सो अगर आपको यूजर को डीएक्टिवेट नहीं करना है, ओके, अगर आपको यूजर को डीएक्टिवेट नहीं करना है और परमानेंटली वो यूजर परमानेंटली आपकी कंपनी छोड़ के नहीं जा रहा है, ही इज गोइंग ऑन लीव फॉर 1 मंथ और सम मंथ, तो हम उसको फ्रीज कर सकते हैं, ओके, वी कैन फ्रीज दैट यूजर, अब ये दोनों का जो डिफरेंसेस है ना, विल सी, ओके, इन आवर नेक्स्ट सेशन। हम लोग इसका नेक्स्ट सेशन में हम लोग इन दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस हम विल सी। ओके, व्हाट इज डीएक्टिवेटिंग द यूजर मीन्स एंड व्हाट इज द फ्रीजिंग द यूजर। ओके, और लाइसेंसेस जो हमारे अक्वायर्ड होते हैं वो फ्री होते हैं या नहीं होते हैं, मीन्स अगर मैं डीएक्टिवेट करता हूं तो मुझे वो लाइसेंस फ्री हो जाता है या नहीं होता है, वो हमें देखना है। फ्रीज अगर मैं यूजर करता हूं तो मुझे लाइसेंस मिलता है वापस, नहीं मिलता है, वो भी मुझे देखना है। सो आई विल टेल यू ऑल दिस थिंग्स